Hello and welcome everybody. Welcome back to my channel When Humanities is Life. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 यानी कि आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल एडजुडिकेशन एंड ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारे एक्ट्स है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, बट स्टे ट्यून्ड एंड यू वोंट मिस एनीथिंग. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते हैं एडवर्सेरियल मॉडल और इनक्विजिटोरियल मॉडल के डिफरेंस से लेके. हम जुडिशरी जब हम सिविल लॉ और कॉमन लॉ समझ रहे थे, देन वी वेर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस, और इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में है इंट्रोडक्शन में. सो व्हाट डू यू मीन बाय द एडवर्सेरियल मॉडल? सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टीज इन लीगल प्रोसीडिंग in case of the adversarial model, they develop their own theory, they gather their own evidence and they support their claims through that evidence. यहाँ पे जो lawyers है, they are assisted by lawyers. Lawyers की सबसे ज़्यादा active role है यहाँ पे, और lawyers जो है they present the merits of the case before a neutral judge. यहाँ पे judge बहुत ज़्यादा neutral है. अब in case of inquisitorial model, जिसको interventionist model और investigative model भी कहा जाता है, यहाँ पे हमारे judge जो है वो एक्टिव होते हैं. यहाँ पे लॉयर्स की कुछ खास रोल ही नहीं है. देयर इज़ नो सच लॉयर्स इन दिस केस. यहाँ पे जज डिसाइड्स एवरीथिंग, हाउ द प्रोसीडिंग इज गोइंग टू गो ऑन. he or she can investigate into the matter like the police. That's why it's called the investigative model. यहाँ पे basically judge active है, यहाँ पे judge passive है, यहाँ पे lawyers important है, यहाँ पे lawyers है ही नहीं. यहाँ पे जो adversarial model है, they're the parties of the case, they have an effective control over the process. तो ये रहा आपकी difference in a nutshell. यहाँ पे मैंने सब कुछ cover कर दिया, but still let us do the details of the thing, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. तो आप फर्स्ट पॉइंट आप समझ चुके हैं. इसके बाद यहाँ पे जज डिसाइड्स द मैनर एंड मोड इन विच द एविडेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड, जस्ट एज आई सेड. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टू द फैक्ट. सेकेंड डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ द एडवर्सरियल मॉडल, the parties are assisted by the lawyers who are active, they play a proactive role. In case of the investigative model, यहाँ पे the judge evaluates the evidence and legal claims. The judge is everything in the case of inquisitorial model. Third point क्या है? Lawyers in case of the adversarial model gather evidence and even engage in cross examination and scrutiny of evidence. मतलब अगर एक witness को present किया opposing parties ने, तो क्या होगा? जो prosecutor है या फिर जो opposing party है उनसे वो cross examine करेंगे वो witness को, उनसे पूछताछ करेंगे, उनको critically examine करेंगे. ये in a way this is good to check the credibility and the authenticity of the fact. And in case of the inquisitorial model, less reliance is placed in cross examination. Inquisitorial model में इतना ज़्यादा importance नहीं है cross examination की. फिर क्या है? In case of adversarial model, the judge plays a passive role, मतलब वो active नहीं है. Solely based on the evidences and arguments is presented by the opposing lawyers, he or she gives the judgment. And in case of the inquisitorial model or the interventionist or investigative model, यहाँ पे judge takes a center stage, an active role, decides claims by evaluating evidences and determining facts and issues himself. मतलब वो खुद से सब कुछ करते हैं. उसके बाद हम आते हैं to understand in which countries are the two different systems followed. In case of the adversarial model, they are followed in common law countries. अब common law country क्या है ये तो आप जानते हैं, जुडिशरी से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कॉमन लॉ मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे द डिसीशंस रेंडर्ड बाय द जजेस दे सर्व एज बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस. यहाँ पे जजेस जो बनाते हैं इन सारे कंट्रीज़ में, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे उन लोग जो भी डिसीशंस देते हैं दे आर सर्विंग एज लॉ इन वेरियस फील्ड्स. And in case of inquisitorial model, it's adopted in continental Europe, in civil law countries, जहाँ पे जुडिशरी के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉ बनाए, वो कुछ ऐसे बाइंडिंग चीज़ें बनाए, वो सिर्फ जजमेंट देते हैं. इन केस ऑफ सिविल लॉ कंट्रीज, कॉन्टिनेंटल यूरोप विच फॉलोज रोमन लॉ और नेपोलियनिक कोड लाइक जर्मनी एंड रशिया, दे फॉलो द इंक्विजिटोरियल मॉडल. बस अब ये जो 5 पॉइंट अगर आप लिख के आए, दैट विल बी, यू विल गेट फुल मार्क्स. मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में. उसके बाद हम आते हैं
Practical Guide to Evidence. This was a book written by Peter Murphy which recounts an instructive evidence कि हमारा जो adversarial model है उसकी सच्चाई क्या है. Adversarial model में काफ़ी ज़्यादा technical application of law होते हैं. Here, a frustrated judge of UK asked a lawyer about the truth. कि क्या हम हमेशा सिर्फ एविडेंस ही सुनेंगे या फिर हम जो सच है वो भी सुनेंगे कभी कभी. तो काउंसिल लॉयर ने कहा कि नो माई लॉर्ड, यू आर मेयरली सपोज टू हियर द एविडेंस. यही चीज़ है जो कि हम एडवर्सरियल मॉडल में फॉलो करते हैं. अब ये दोनों सिस्टम्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं. मैंने इसे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो पहले एडवांटेज क्या है एडवर्सरियल मॉडल की? दे यूज़ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव. मैंने जैसे कहा कि इन केस ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम लॉयर्स जो है वो क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं अपोजिंग पार्टीज़ की एविडेंस को, जिससे कि दे प्रूव द ऑथेंटिसिटी और द इफेक्टिवनेस ऑफ द एविडेंस. इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है टू टेस्ट द एविडेंस. यहाँ पे पार्टीज़ जो है ये ज़्यादा विलिंग रहते हैं टू एक्सेप्ट द रिजल्ट बिकॉज दे आर गिवन इफेक्टिव कंट्रोल. ये खुद जो थ्योरी है एक केस की वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स. फिर वो अपने लॉयर्स खुद हायर करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, उनसे बातचीत करेंगे. तो दे आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट. यहाँ पे इंक्विजिटोरियल मॉडल पे तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस है. पहले तो द सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली एफिकेशियस. बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इन केस ऑफ इंक्विजिटोरियल मॉडल. क्यों? क्योंकि द जजेस दे आर ऑल इन द केसेस एंड दे कैन प्रिवेंट डिलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स. क्या होता है देखो, इंडिया में क्या होता है आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे, काफ़ी सारे फिल्म्स भी है इसलिए बनते हैं कि काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि जजेस को डिपेंड करना पड़ता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द टेक्निकल डिटेल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. वो डिपेंडेंट है ही इनेविटेबली ऑन द थिंग्स दैट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उनकी एक पर्टिकुलर रूल है जिसके अकॉर्डिंग्स में उन्हें काम करना है, उसके ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए दे हैव टू वेट अकॉर्डिंग टू व्हाट द लॉ स्टेट्स. आज के बाद शायद 2 महीने बाद एक और हियरिंग हो, तो इसके बीच में काफ़ी चीज़ें हो सकते हैं. एविडेंस ऑफ वन पार्टी कैन बी डैमेज्ड बाय द अपोजिंग वन. और जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहते हैं वहाँ तो इनेविटेबली वन पार्टी इज़ अ सफरर. इसके लिए जजेस जो है दे कैनॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव टू बी न्यूट्रल. दे आर इनएक्टिव एंड पैसिव इन केस ऑफ द एडवर्सरियल मॉडल. यहाँ पे इंक्विजिटोरियल मॉडल में सिंस द जजेस हैव अ प्रोएक्टिव रोल दे कैन इंटरवेन इन द प्रोसेस एज दे वांट. इसीलिए दे प्रिवेंट डिलेज. बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये सिस्टम. जजेस पर्पसफुली प्रिवेंट डिलेज एंड रिजल्टिंग इन अ efficient discharge of justice. It also preserves equality as a party with more resources and able lawyers, they won't be able to influence a judge. जज को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल है. हमारे जज भी ऐसे ही चाहते हैं करना, बट वो तो टेक्निकल चीज़ों के लिए उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाते ये सब करना. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है जो कि आप लिखेंगे. उसके बाद वी कम टू द डिसएडवांटेजेस. एडवर्सरियल मॉडल की डिसएडवांटेज काफ़ी सारे हैं. कॉस्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम फॉल्स ऑन द पार्टीज एंड दिस क्रिएट्स एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन. एक पार्टी जिसके पास उतना पैसा नहीं है, दे कांट हायर कॉम्पिटेंट लॉयर्स and they cannot present sophisticated evidences like the party which is better off. As a result, accessibility and affordability are the two greatest challenges of the adversarial model. With the role of lawyers, the procedural formalities, they prolong the procedure. ये टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं बातों को. एक केस 30 साल तक चल रहा है, उसके बाद भी इफ़ेक्टिव नहीं है. Judges play a less active role. They are not duty bound to ascertain the truth. इसीलिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होते हैं हमारे एडवर्सरियल मॉडल में. अब डिसएडवांटेज ऑफ इंक्विजिटोरियल मॉडल. अब देखो, जज जो है ही इज़ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटिव मॉडल कहते हैं ना हमारे इंक्विजिटोरियल मॉडल को. दैट्स वाई ही कैनॉट बी न्यूट्रल एनी लॉन्गर. वो इम्पार्शियल नहीं रह सकते. काफ़ी बार वो कुछ ज़्यादा बायस भी हो जाते हैं. And since there is a lack of incentive structure for judges to involve themselves in a crime, there are many instances of loopholes. Judges को काफ़ी बार पैसा कम दिया जाता है obviously,
और उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट बी, द एरियर। अब इसका डेफिनेशन क्या है? Alternative dispute resolution. It refers to the use of non-adversarial, which means less formal techniques of adjudication of legal disputes. मतलब थोड़ा सा कम टेक्निकल, कम फॉर्मल चीज़ों को के द्वारा हम अपने प्रॉब्लम को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं. That's ADR. Even before the advent of the formalistic model of courts, इंडियन लीगल सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज बाई सेवरल नेटिव एरिया. यहाँ पे इंडिया पे काफ़ी सारे ऐसे नेटिव एरिया थे, जैसे कि कुला, श्रेणी, पुगा. और यहाँ पे जो पंचायत है आज के ज़माने में भी है, इन द विलेजेस वी हैव द पंचायती राज सिस्टम. इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरिया जब हम नॉन टेक्निकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कुला में क्या होते थे? कुला सेटल द डिस्प्यूट्स ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, ट्राइब, रेस, कास्ट. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, FCTRC. ठीक है, दैट्स कुला. श्रेणी इज फॉर सेटलिंग द इंटरनल डिस्प्यूट्स इन बिजनेस एंड द कॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिजन्स. एंड पुगा फॉर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स ब्रांचेस. आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली आप लीगल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री से आप रिलेट कर रहे हैं लीगल स्टडीज़ को, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस चैप्टर. 10 मार्क्स है इस चैप्टर में. ठीक है, अब देखो पंचायत एग्जाम्पल है, हमने ऑलरेडी बता दिया. ना दीज इंस्टीट्यूशंस में क्या होते थे? इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस आर डोमिनेटेड बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी. दो ऐसे पार्टीज है जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और उनको डोमिनेट कर रहे हैं एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो कि इम्पार्शियल है, सीकिंग टू आइडेंटिफाई द आउटकम और द नीड्स एंड कंसर्न्स द पार्टीज. तो आप बस ये जो हाईलाइटेड है इसे अच्छे से याद रखना. एंड द पर्सन, द थर्ड पार्टी ट्राइज टू अराइव एट अ सेटलमेंट, अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ऐसे एरिया की कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स भी है. अब बेनिफिट्स क्या है इसकी? लेट्स डू इट. दे आर स्पीरियर, इनफॉर्मल एंड चीपर. वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इनफॉर्मल है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, चीप भी है. दे प्रोवाइड अ मोर कन्वीनियंट फोरम. द पार्टीज कैन चूज, मतलब कौन सी प्लेस पे हमारे डिस्प्यूट सेटल होगा, कौन सी टाइम पे होगा, कैसे प्रोसीडियर फॉलो किया जाएगा, सब कुछ पार्टी सिलेक्ट करेंगे. इतना कन्वीनियंट है हमारे एरिया. उसके बाद डिस्प्यूट इज, इफ द डिस्प्यूट इज टेक्निकल, एरिया फ्लेक्सिबल भी है बिकॉज इट कैन ऑल्सो रेफर द केस टू पर्सन्स विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड. जैसे कि डिस्प्यूट्स अबाउट द issues about construction, regulation of construction industry, these are referred to engineers because they would have a better knowledge than lawyers. इसके बाद it reduces delays. As a result, it also reduces high pendency of courts. Obviously इतने सारे लोग हैं जो कि अपने प्रॉब्लम्स को लेके कोर्ट पे जाते हैं, इतना ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो अगर हम छोटे छोटे मामलों को आपस में सुलझा लेंगे इन दीज नॉन टेक्निकल प्लेसेस, तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट द कोर्ट्स. अब इंडिया की लॉ कोर्ट्स की प्रॉब्लम क्या है? पहले तो लैक ऑफ नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है हमारे पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स के मुकाबले. फिर इंक्रीजिंग लिटिगेशन इन इंडिया, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे अननेसेसरी लॉज अभी भी है. इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस ज़्यादा हो जाते हैं, लॉयर फीस ज़्यादा हो जाते हैं, और एक केस को मतलब कोर्ट में लाने के लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च करना पड़ते हैं. और डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, एक केस चलता ही जा रहे हैं, मतलब 20-30 साल तक चल रहा है, मतलब जिसके बारे में केस है वो शायद मतलब जवानी से द पर्सन बिकेम ओल्ड. सच थिंग्स हैपन. उसके बाद क्या होता है? ADR emerged as a successful alternative to court trials. It contributes tremendously to revive the litigants' faith in justice delivery system. That's the thing about ADR. अब हम आते हैं ADR की सबसे पहले जो टेक्निक है उस पर, आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन इज अ private arrangement of taking disputes to a less adversarial, less formal and more flexible forum. ये 3 वर्ड्स है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे. एंड abiding by the judgment of a selected person instead of carrying it out to the established courts of justice. मतलब हम एक less adversarial, मतलब less technical, less formal और more flexible forum पे ले जा रहे हैं अपने केस को, और हम एक selected third party की decision को accept करने की बारे में सोचते हैं. That's arbitration. We abide by it.
आर्बिट्रेशन दो ही तरीके से शुरू हो सकते हैं, या तो दो पार्टीज खुद अग्री करेंगे या फिर कोर्ट रेफर करेंगे, दैट्स कोर्ट रेफरल। अगर कोर्ट रेफर करें दैट्स कोर्ट रेफरल, और अगर पार्टीज खुद से आपस में इस बात को सुलझा ले एंड दे अग्री टू रिकोर्स टू आर्बिट्रेशन, दैट्स आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब पार्टीज विल सिलेक्ट ए क्वालिफाइड एक्सपर्ट, दैट्स द आर्बिट्रेटर। The process of arbitration is extremely confidential and secretive, and the decision rendered by the arbitrator is called the arbitral award. It's binding on the parties. अब arbitral award जो है और जो हमारे जजमेंट इन द कोर्ट है, इसकी कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ है। सिमिलैरिटी ये है कि आर्बिट्रल अवार्ड भी कोर्ट जजमेंट की तरह बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, एंड द आर्बिट्रेटर कैन ऑल्सो ग्रांट रिलीफ्स, कैन ग्रांट इंटरिम मेजर्स लाइक अ जज। जैसे कि अगर कोई किसी ने सपोज एक अनएथिकल एक्ट किया, चोरी किया, सपोज एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट या फिर किसी भी चीज़ में, तो द कोर्ट कैन ऑल्सो ग्रांट हिम रिलीफ फॉर सम टाइम, कैन ग्रांट हिम बेल फॉर सम रीजन्स। ऐसे पावर्स भी दिया गया है आर्बिट्रेटर को। और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? आर्बिट्रल अवार्ड डजंट हैव प्रेसिडेंशियल वैल्यूज। हमारे जजमेंट्स जो है दे सर्व एज प्रेसिडेंस, इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स फॉर फ्यूचर जजेस, बट इन केस ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड दे आर not binding for future arbitrators, they have no presidential value, and arbitrators are free to give their judgments solely on the basis of what they think is right. उन्हें कुछ ऐसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं इस वीडियो की लास्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन की 6 टाइप्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है? आर्बिट्रेशन विद इंडियन पार्टीज, इंडिया में होता है, रूल्स एप्लीकेबल आर इंडियन, दैट्स डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। इसके बाद है फॉरेन आर्बिट्रेशन। Proceedings are conducted outside India, but the award is to be enforced inside India. मतलब जो भी प्रोसीडिंग है आर्बिट्रेशन की वो देश की बाहर हो रहे हैं, बट जो रिजल्ट है, जो डिसीजन है, जो आर्बिट्रल अवार्ड है, वो इंडिया में इन्फोर्स होने वाले हैं, दैट्स फॉरेन आर्बिट्रेशन। एड हॉक आर्बिट्रेशन क्या है ये समझना ज़रूरी है। दे आर गवर्न बाई पार्टीज देमसेल्व्स। जो पार्टीज है टू अ डिस्प्यूट in arbitration, they are to govern the process, and they do this without recoursing to formal arbitral institution, domestic or international। मतलब वो अपने आप से सेटल करते हैं सारी चीज़ें, वो अपने आप से गवर्न करते हैं एंटायर प्रोसेस, द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, पार्टीज सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अपने आप से सब कुछ करते हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है। The parties to the dispute in arbitration, they select a particular institution, and this particular institution selected by the parties takes the arbitration forward. ये institution एक arbitrator को choose करेगा. It lays out rules to be applicable, mode of obtaining evidence, and there are several institutions in India and elsewhere that govern arbitration. जैसे कि LCIA, London Chamber of International Arbitration, ये एक बहुत ही important institution है जो कि arbitration process को govern करते हैं in case of a number of disputing parties. It has a registered office in New Delhi. फिर statutory arbitration, ये क्या है? An arbitration which is mandatorily imposed by operation of a particular law. एक particular law है of the constitution or which is enacted by the parliament, जो कि एक arbitration को mandatory बना देते हैं to the parties. It mandates a recourse to arbitration in case of any dispute. Defense of India Act 1971, ये जो act है, it states that in case of any dispute arising from the act or within things provided here, arbitration will be taken recourse to solve such disputes. That's statutory arbitration. एक ऐसे arbitration जो कि एक law की वजह से हो रहे हैं, एक law में बोला गया है ये arbitration से ही ये dispute को solve किया जाएगा. Then क्या है? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। यहाँ पे एटलीस्ट एक पार्टी ऐसी है जो कि एक दूसरे कंट्री की रेसिडेंट है या फिर ऐसे कोई कंट्री की कॉर्पोरेट है जो कि इंडिया नहीं है, अदर दैन इंडिया। लाइक फॉर इंस्टेंस आर्बिट्रेशन विद अ गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इट इज़ कंसिडर्ड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, एंड दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन इज स्पेसिफिकली डिफाइंड बाई Section 2, Subclause 1, Subclause F of Arbitration and Conciliation Act of 1996.
यकीन मानो ये आपके चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक लॉ है। इसके बाद और कुछ नहीं है। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आई हैव एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट अ कमेंट एंड आस्क मी। ठीक है, सो बाय बाय।